Hello everyone, welcome to Ekamayas Academy. So we are discussing the art and culture in this particular digital age. So this comes up with the part 5 of the lecture of this particular Yojana. And if you would be seeing, there is one particular article which is very important, which explains about the impact of digital technology and social media on this particular art museums. So hope you know about what an art museum is. It is very important aspect, which is a holy place which I feel to restore the facts, restore the arts which were present since our historical past, and to share the knowledge regarding with that particular arts, articrafts, paints, decorative items or clothings of the earlier historical kings who were there. So ये जो इंडियन हिस्ट्री का जो आर्ट्स की है क्लियर हिस्टोरिकल पास में, उस पर्टिकुलर आर्ट्स को लगाने वाले को आर्ट हिस्टोरिकल म्यूजियम बोलते हैं। एंड दोज आर्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट इंडियन आर्टिस्ट, दे आर प्रिजर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन to share the knowledge of that particular art. So protecting the art museum is very important aspect in Indian like society, which gives a greater emphasis to heritage and culture. Along with it, government is also trying to give its best in protecting India's heritage and culture as such. And if you could see an art museum वाला definition अगर आप पढ़ लो, so it's a public or private institution that shall collect, preserves, exhibits and interprets work of art for the education and enjoyment of the people. जनरली जब भी हम आर्ट म्यूजियम को जाते हैं उसमें क्या देखने मिलता है, क्लियर वी शैल बी सीइंग सर्टेन डाइवर्स रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पेंटिंग्स देखने को मिलेगा, स्कल्पचर्स मिलेंगे हिस्टोरिकल पास्ट का, फर्नीचर मिलेगा, राजा राजाओं का बेड, डाइनिंग टेबल। सलारजंग म्यूजियम में मैं बहुत देखा था, दिल्ली का नेशनल म्यूजियम में बहुत देखा था ऐसा। ड्राइंग्स मिलेंगे, प्रिंट्स मिलेंगे, फोटोग्राफ मिलेंगे, टेक्सटाइल्स मिलेंगे, सेरामिक्स मिलेंगे जिसमें चाय पीते थे, पानी पीते थे, दारू पीते थे, डेकोरेटिव आर्ट्स, मतलब यू विल फाइंड मैक्सिमम डाइवर्स ऑब्जेक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर आर्ट म्यूजियम। सो इन द प्रेजेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है इसके ऊपर? आर आर्ट मीडियम म्यूजियम्स जो भी हैं, आर दे एबल टू correlate with this digital technologies and the era of social media? And are these art museums taking the advantage of this digital technology to enhance the entertainment to the public and to create education or not? So is there any limitation, challenge which is there? That is what we are going to check out. So पहले थोड़ा बहुत म्यूजियम्स का नाम जान लेते हैं, आर्ट म्यूजियम का, क्लियर? तो maybe a chance that question in preliminary examination might come from this particular art museums which are there in India. अगर आप देखेंगे नेशनल म्यूजियम है, क्लियर, सो न्यू दिल्ली में, so this particular museum has art, artifacts, antiquities from different periods of Indian history. So Indian history में मुगल टाइम से लेके जितना भी आर्ट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड एंटिक्विटीज हैं, ये सारे प्रिजर्व किया गया था नेशनल म्यूजियम में न्यू दिल्ली में. सो दिस इज वेरी क्लोजर टू द रायसीना हिल्स. सो वंस यू विजिट इट वुड बी ए वंडरफुल एक्सपीरियंस ओवर हियर. सो दे आर हैविंग द स्कल्पचर्स कलेक्शन, पेंटिंग, डेकोरेटिव आर्ट्स, कॉइन्स एंड मनुस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन है इसमें. अगर दिल्ली गए तो ज़रूर जाना नेशनल म्यूजियम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो और एक म्यूजियम है इंडिया में, नेशनल गैलरी एंड मॉडर्न आर्ट, ये भी नया दिल्ली में है. So which was established near closer to the independence in 1954. So it showcases the modern and contemporary art. So आज की ज़माने की जो modern art है, contemporary art है, so which has been made by the Indian artist in the present contemporary era, like includes the paintings, sculptures and other artworks जो Indian artist ने अभी post independence और in the contemporary world जो भी बनाया गया था, वो लगाते हैं उस चीज को, ये कंटेम्पररी एंड मॉडर्न आर्ट को लगाते हैं नेशनल गैलरी में. जो हिस्टोरिक्स आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, एंटिक्विटीज हैं वो लगाते हैं नेशनल म्यूजियम में, ये याद रख लो. सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद में बहुत फेमस है. सो दिस मेजरली गिव्स द शोकेस ऑफ द सलारजंग, क्लियर, हु वाज अ निजाम किंग.
सो ये निज़ाम रूल में जितने भी होते थे, सो सारे प्राइवेट कलेक्शंस, उसका पेंटिंग, स्कल्पचर्स, टेक्सटाइल, सेरामिक्स, फर्नीचर, राजाओं का पूरा टेक्सटाइल्स कैसे पहनते थे, वॉर में कैसे फाइट करते थे, स्वॉर्ड्स, पूरे सब कुछ मिला के इस पर्टिकुलर सालारजंग म्यूजियम जो भी है इसमें बनाया। इट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट कलेक्शन ऑफ आर्ट एंड एंटिक्स इन द वर्ल्ड, सो विच हैज पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, टेक्सटाइल, सेरामिक्स, फर्नीचर। People who would come to Hyderabad definitely visits to this particular location. So आप भी ज़रूर जाना, जब हैदराबाद जाते हैं ज़रूर सालारजंग म्यूजियम विजिट करना। एंड ऐसा नहीं कि पीपल जनरली ऐसा पैदल चल के एक आधा घंटे में बाहर निकल के आ जाते हैं, तो उसका आर्ट का एसेंस देखो, उसका ऑथेंटिसिटी देखो, उसका इंफॉर्मेटिव इंडेक्स देखो, है ना। और एक म्यूजियम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में। सो फॉर्मरली इसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन तो यूपीएससी में पूछेंगे नहीं, कई कौन बनेगा करोड़पति में पूछ लिया तो पूछ लिया, बट यूपीएससी में दे वोंट आस्क दिस क्वेश्चंस। सो इस पर्टिकुलर म्यूजियम में अगर आप देखेंगे, इट हैज इंडियन आर्ट, स्कल्पचर्स, मिनिएचर्स, पेंटिंग्स, डेकोरेटिव आइटम्स। कुछ खास नहीं है जो हर म्यूजियम में है, यहाँ पे भी है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम मुंबई में। एंड वी हैव वन मोर म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता, विच इज द ओल्डेस्ट म्यूजियम। 1914 में बनाया गया था ये। It is the oldest and largest museum in India. It has coins, artifacts, paints and archaeological finds, represents the cultural heritage of India and other Asian countries too. तो कोलकाता as it is closer to the Southeast Asian nations, तो इसमें बाकी का जो एशियन कंट्रीज हैं उस पर्टिकुलर एशियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस भी इसके ऊपर इट इज प्रेजेंट। क्लियर। सो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में, इट इंक्लूड्स गांधारा स्कल्पचर्स। ये नई चीजें, Gandhara School of Art, you know, right? The sculptures made of Gandhara art. So it's a blend of Buddhist and the Islamic architecture का blend जो मिला था उसको हम Gandhara School of Art बोलते हैं। We have 3 school of arts: Gandhara School of Art, Mathura School of Art, Amravati School of Art. Most important 3 school of arts. एक बार चेक कर लो क्या होता है Gandhara School of Art, Mathura School of Art. Chances are very great that you would be getting questions. तो इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट भी लगाया गया था चंडीगढ़ में। तो आप कहीं पे भी इस पर्टिकुलर सिटीज पे जाए, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, सो मेक श्योर दैट यू विजिट टू दीज पर्टिकुलर म्यूजियम्स। तो इस पर्टिकुलर चंडीगढ़ म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स व्हिच वर कलेक्टेड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यू नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, उसका जो आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन है वो भी लगाया गया था इस पर्टिकुलर चंडीगढ़ म्यूजियम में। ओके, तो ये डिजिटाइजेशन वर्सेस आर्ट म्यूजियम क्या होता है? सो हाउ दिस डिजिटाइजेशन वुड बेनिफिट दिस आर्ट म्यूजियम्स? अगर आप देखेंगे, इट मेक्स मोर एक्सेसिबल टू वाइडर ऑडियंस, क्योंकि हर एक बंदा जो इंडिया में बैठा है, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद जाके देखने का वो इरादा नहीं है। सो इस डिजिटाइजेशन प्लेटफॉर्म से by using various videos recorded virtual aspects से आप इस particular audience को बढ़ा सकते हैं, है ना? which will involve digitizing and artifacts, creating virtual exhibits, online में दिखा सकते हैं, utilizing online platforms for educational outreach। मतलब आप खुद उस जगह पे जहाँ पे एक फोन है, एक YouTube चैनल बना लिया आर्ट म्यूजियम्स का, उसका पूरा पिक्चराइजेशंस दिखा लिए। सो ये कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन हैज ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन गिविंग वाइडर ऑडियंस टू दिस आर्ट म्यूजियम। अलॉन्ग विद दैट, ये ऑडियंस को नॉलेज बढ़ाने के लिए, एंटरटेनमेंट बनाने के लिए एंड उसका नॉलेज बढ़ाने के लिए ये डिजिटाइजेशन क्या हेल्प करेगा। डिजिटाइजेशन हेल्प अलाउस म्यूजियम टू प्रिजर्व दिस, ये स्पेलिंग मिस्टेक आ गई यहाँ पे, प्रिजर्व फ्रेगाइल आइटम्स, रीच ग्लोबल ऑडियंस। जो अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, दे कैन ऑल्सो हैव द विजुअलाइजेशंस विद न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर इमेंसिव एक्सपीरियंसेस एज सच। बट चैलेंजेस है इसमें, क्योंकि डिजिटाइजेशन ये आर्ट म्यूजियम का करने के लिए पहले तो फंडिंग की जरूरत है। सो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये सेपरेट फंडिंग देने का कुछ नहीं है। सो फंडिंग का एक बड़ा इश्यू है इसमें। सेकेंड है कॉपीराइट का इश्यू। हो सकता है द सेम आर्टिफैक्ट माइट बी डिजाइन्ड in some other part of the world and they might claim some recognition। तो इसमें हमें पहले इसका कॉपीराइट बनाना पड़ेगा। Then ensuring digital preservation is a challenge।
So ये challenges है, but we can manage these particular challenges. So through virtual existence of these particular art museums, we can wider audience, wider the knowledge, and make our cultural art knowledge to reach to the maximum people as such. And सालारजंग म्यूजियम अगर आप देखें, बहुत सारे म्यूजियम्स ट्राई किए थे, बट इट इज सालारजंग म्यूजियम विच हैड यूटिलाइज द मैक्सिमम डिजिटाइजेशन. अगर आप देखेंगे ऑनलाइन बना दिए पूरे, टिकट्स भी ऑनलाइन, आप जो भी देख सकते हैं वर्चुअल प्रेजेंस में, दैट कैन बी सीन विद इन द सालारजंग म्यूजियम पोर्टल में. अगर गए तो आपको दिखाया जाएगा. उसमें एक एग्जाम्पल बताता हूं. सालारजंग म्यूजियम आर्टिफैक्ट्स हैव बीन डिजिटाइज्ड यूजिंग RFID टेक्नोलॉजी. इट हैज इंप्लीमेंटेड इन इट्स लाइब्रेरी. तो इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में RFID टेक्नोलॉजी का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. सो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं. लाइक हो सकता है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए बैकग्राउंड के ऊपर. टाइप ऑफ पैसिव वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउज फॉर ट्रैकिंग और मैचिंग ऑफ एन आइटम और एन इंडिविजुअल. सो इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं. हो सकता है इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में 2022 में, 2023 में. ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, बहुत बार न्यूज़पेपर में दिखा. सो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को उसका लाइब्रेरी में दे आर यूटिलाइजिंग इट. क्लियर. सो द रीडर गिव्स ऑफ रेडियो वेव्स and get signal back from the RFID tag, while the tag uses the radio waves to communicate its identity and other information. तो ये tag जो भी है, this uses the radio waves and it will communicate with that particular user, है ना. अगर आप लाइव में जाएंगे सालारजंग म्यूजियम, then you will come to know regarding with this. अगर ये म्यूजियम्स का सोशल मीडिया के साथ इंटरफेरेंस देखेंगे, सोशल मीडिया ऑफर्स म्यूजियम्स पावरफुल टूल्स टू कनेक्ट विथ ऑडियंस. आजकल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत सारे चीज हैं वेयर दे कैन एंगेज देम इन न्यू वेज एंड फुलफिल देयर एजुकेशनल एंड कल्चरल मिशंस, है ना. सो पीपल हु वांट टू फुलफिल देयर एजुकेशनल एंड कल्चरल मिशंस एंड दोज पर्टिकुलर म्यूजियम्स विच वांट टू फुलफिल देयर कल्चरल मिशंस, सर्टेन म्यूजियम्स के पास एक टारगेट है दैट मोस्ट ऑफ इट्स आर्टिफैक्ट्स का नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाना. दैट्स व्हाई बीच में ये आर्ट म्यूजियम्स ने क्या किया, they have established mobile art museums that they used to take few arty crafts and arts from this museum, and they used to reach different schools, colleges, educational institutions and make the people to have the visualization of this particular art at their particular doorstep in that educational institution as such. So engage them in new ways and fulfill their educational cultural missions में ये social media बहुत help कर सकता है. Like इसमें क्या कर सकता है सोशल मीडिया, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इट ऑन आर्ट म्यूजियम्स. सो इंक्रीज द रीच एंड विजिबिलिटी. एक तो पक्का है, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है थ्रू विच हमारा रीच एंड विजिबिलिटी बनेगा. सेकेंड, एनहांसिंग एंगेजमेंट. इंस्टाग्राम एंड ट्विटर से सो वी कैन बी अपडेटेड, लाइक कुछ नया प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें एंगेज कर सकते हैं. पीपल्स पार्टिसिपेशन in that particular art museum programs can be done very effectively and community भी build कर सकती है, like wide base of popularized art museum बना सकते हैं and wide base of fan following and wide base of followers को आप बना सकते हैं ताकि उसका जो learning experience है that would be shared to maximum people. and promotion of events. अगर art museum में कुछ ऐसा कुछ event चल रहा है, नहीं तो कुछ visualization of the arts and कुछ विजुअलाइजेशन मैनर मूवी दिखा रहे उसके बारे में, तो उसका प्रमोशन कर सकते हैं. तो वो प्रमोशन ऑफ इवेंट्स के बारे में बहुत सारे लोग जानेंगे, देन ह्यूज क्राउड ऑफ ऑडियंस उसमें आने का चांसेस मिलेंगे. तो आर्ट म्यूजियम्स विल बिकम more and more famous and more educationally these art knowledge regarding with where art museums have preserved, वो knowledge जो है बहुत सारे लोगों को शेयर होगा. क्लियर. ये तो यूपीएससी में कई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट चैलेंजेस है इसमें सोशल मीडिया यूज करने में. पहले तो सोशल मीडिया इज अ लार्जर ग्राउंड, ह्यूज कंपटीशन है. आजकल सब्जी बनाने वाली, है ना, रोड साफ करने वाली, गार्डन में ट्रिमिंग करने वाले, है ना, सैलून में ट्रक चलाने वाले, सब लोग यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया. तो हेवी कंपटीशन है. हो सकता है आर्ट म्यूजियम इसके प्लेटफॉर्म यूज करके, सोशल मीडिया यूज करके might not get that greatest advantage because already many people have been indulged. बहुत सारे लोग ये आर्ट म्यूजियम्स देखने के you will have the interest as such. Very few people would be having the interest, right?
सो एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। एंड कंटेंट क्रिएशन में मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक पिक्चर दिखाओ एंड बोलो कि यार ये देखो, उसके पीछे बैकग्राउंड कंटेंट नीचे लिखना एंड उसका विजुअलाइजेशन कितने अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, तो वो कंटेंट क्रिएशन भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए फिर एक R&D टीम को बनाना पड़ता है, फिर फंडिंग का इश्यू निकलेगा। एंड एक्सेस, ये लोग अगर कुछ यूट्यूब पेज बना दिए, नहीं तो फेसबुक पेज बना दिए, वो एक्सेस मैक्सिमम पीपल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसके लिए फिर मार्केटिंग का टीम को लाओ, फिर प्रमोट करो, ये सारे चीज इन्वॉल्व है इसमें। एंड मेजरिंग इफेक्टिवनेस, तो मेजरिंग इफेक्टिवनेस मतलब ये सोशल मीडिया हाउ मच इट इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आर्ट म्यूजियम इन शेयरिंग द कल्चरल एंड हेरिटेज नॉलेज ऑफ इंडिया। सो वो मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, उसका इफेक्टिवनेस को हम मेजर नहीं कर सकते। एंड वर्चुअल प्रेजेंस के लिए देयर इज ह्यूज चैलेंज, एज आई हैव सेड, कंटिन्यूस शूटिंग ऑफ दोज पर्टिकुलर पीपल, एंड वो वर्चुअल प्रेजेंस है और आगे जाके दिक्कत होगा कि लाइक वी माइट हैव कॉपीराइट इश्यूज, और उसका सेम टाइप का आर्ट बना के हो सकता है दे कैन क्लेम द प्रेस्टिजियस एस्पेक्ट। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस बहुत है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। एंड न्यू प्लेटफॉर्म्स विच आर देयर, दे आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर डाइवर्सिटी फॉर मेनी एस्पेक्ट्स। तो इंस्टाग्राम पे अपलोड किए तो बोलेंगे नहीं नहीं टेलीग्राम पे करो, नहीं नहीं फेसबुक पे करो, गूगल फॉर्म भरो। ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बढ़ने के बाद ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि लाइक हाउ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल बी हेल्पिंग इन encouraging these art museums knowledge deliberation or making people of India to learn about the cultural heritage regarding with this art coming to art museums। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सो देखो आगे जाके क्या होता है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा में और कुछ नया निकल के आए रिगार्डिंग विद द चैलेंजेस विच दे आर फेसिंग। ओके, सो दिस इज अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें ऐसा खास कुछ बात नहीं है, वो गिन चुन के जितने भी म्यूजियम है उसके बारे में याद रख लो, चाहे भले हो सकता है एक आधा क्वेश्चन उससे निकल के आए। RFID टेक्नोलॉजी के बारे में, सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, chances are great question would be coming. Clear? Hope you have liked this video. Please click on the like button. Please do share this video and subscribe to Ekam IAS Academy channel and click on the bell icon so that you would be getting continuous notifications. Thank you for watching this video. Have an awesome day. Jai Hind.